So, Namaskaram. We are discussing sections of income tax at its glance level, summary level, and we have covered so far sections till section 80. So, can we quickly revise what we have covered? Yeah. So, we are into which act? We are into Income Tax Act 1961. Section number 1 was scope, extent, title and applicability. Section 2 definition. Section 3 previous year. Section 4 charging section. What charging section says? Total income earned by a person in a previous year shall be assessed in assessment year at tax rates prevailing in annual finance act. तो वो बात हमने की थी. Then section 5 talks about scope of total income, Indian income, foreign income. Indian income means income which is accrued in India, income which is received in India, income which is deemed to be received in India, income which is deemed to be accrued in India. So technically what is foreign income? Income which is not an Indian income is a foreign income. Now, Indian income is taxable to whom? Indian income is taxable in the hands of everyone. Why everyone? Because the income is Indian income. Even if you are a resident or a non-resident, देश के रहोगे या देश के बाहर के रहोगे, in both the cases, it will be taxable in India. ठीक है ना? Resident and non-resident for both. But if you are a non-resident, please remember your only Indian income is taxable. Foreign income is not taxable in India. If you are a resident, then your Indian plus foreign, technically global income is taxable in India. तो residential status के वजह से scope change होता है. Very simple, you have to remember. If you are a resident, global income is taxable. If you are a non-resident, Indian income is taxable. That is fine. Yeah. So section 5A is about Portuguese law. I have already told you, apart from salary, all the other incomes will be divided into husband and wife equally. Then section 6, residential status, two types of status, resident, non-resident. Resident is further divided into ordinary resident and not ordinary resident. Section 7, income deemed to be received in India, which is one example. Provident fund contributed by employer to employee's PF account, not received by employee, but it is taxable in the hands of employee. Dividend income, section 8, dividend is taxable in the year of declaration. Okay. And section 9, income deemed to be accrue or arise in India. इसका एग्जाम्पल आपको मैंने वोडाफोन का केस बताया था. यू हैव टू रिमेंबर दैट इनडायरेक्टली अगर कोई एंटिटी इंडिया से वैल्यू भी अगर डिराइव करती है, भले शेयर्स इंडिया में लोकेटेड नहीं थे, लेकिन वो शेयर्स जो इंडिया के बाहर सेल हुए हैं, जो असेट इंडिया के बाहर सेल हुआ है, उसका वैल्यू वाज डिराइव फ्रॉम इंडिया, तो भैया अभी इंडिया में वो टैक्स होता है. वोडाफोन के केस में नहीं हुआ था बिकॉज दे वन इन द सुप्रीम कोर्ट, बट नाउ वी हैव चेंज द लॉ. एज पर द लेटेस्ट लॉ इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. देन वी हैव डिस्कस सेक्शन 10. सेक्शन 10 का हेडिंग क्या था? इनकम्स, नहीं हेडिंग क्या है? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. नाम क्या है इसका? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. और मैंने आपको पहले ही सिखाया कि चार्ज जो है हमारा वो टोटल इनकम के ऊपर है. ठीक है ना? और मैंने आपको यूनिवर्स बना के दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, कि इस यूनिवर्स में जितने भी इनकम है सारे टैक्सेबल होते हैं, और इसकी वजह से हम टैक्सेबल इनकम का सीरीज cannot be remembered. We cannot remember because we don't have the taxable income का series. Any income that exists in this universe is taxable in India. यहाँ तक clear है? But we can remember what is not forming part of total income. In simple term, what is exempt income, और simple term में what is not taxable. हमारा नेगेटिव अप्रोच होता है क्योंकि हमारा लॉ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है. ठीक है ना? तो एक बार आपने ये वाली लिस्ट बाय हार्ट कर लियो कि these are the income which are not taxable. Few examples of section 10. One is agriculture income, second is share of profit from HUF by a member. तो HUF से जो मेंबर को मिलता है, मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट है. पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है फॉर द पार्टनर्स, दैट प्रॉफिट इज आल्सो एग्जम्प्ट. क्यों? पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स भर दिया, बट सेम लॉ डजंट अप्लाई टू द कंपनी. ठीक है ना? कंपनी में कंपनी टैक्स भरती है, देन डिविडेंड भी टैक्सेबल हो जाता है. देयर इज अ डबल टैक्सेशन इंटेंशनली क्रिएटेड. तो कहीं पे डबल टैक्सेशन होता है, कहीं पे
नहीं होता. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्शन 10. सोल्जर का जो परमवीर चक्र वगैरह उनको मिलता है, उसमें जो उनको पेंशन वगैरह मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट. ठीक है ना. तो कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट होती है. आप स्कॉलर होगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पता है आपको? आपके लिए इनकम है कि नहीं है? इफ यू आर अ स्कॉलर एंड यू गॉट द स्कॉलरशिप, इज इट इनकम फॉर यू? यस, बट इज इट टैक्सेबल? आंसर इज नो. ठीक है ना. कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 10 में लिखा है कि स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट को मिलती है दैट इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है. फिर चैप्टर नंबर 4 चालू होता है. You can understand, no? Income tax is divided into chapters are divided into sections are divided into subsection, clauses, सब clauses. तो हम लोग चैप्टर और सेक्शंस का थोड़ा को रिलेशन देख रहे हैं, याद तो हमें सेक्शंस रखने हैं. ओके. तो सेक्शन 14, अच्छा सेक्शन 10 तक हम आए थे. फिर सेक्शन 11, 12, 13, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? एग्जेम्प्ट असेसी करके कुछ होता है. 2 एग्जाम्पल बताओ. ट्रस्ट जो चैरिटेबल नेचर में होती है, रजिस्टर्ड होती है, एंड देन सेकेंड पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लिए हम क्या नहीं लगाते? टैक्सेशन नहीं लगाते. बट देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट दे हैव टू कंप्लाई विद. कंडीशनल एग्जम्पशन हमने उनको दिया होता है. ठीक है. देन सेक्शन 14 क्या होता है? हम बोलते हैं सारे इनकम को डिवाइड करो कुछ लॉजिकल ऑर्डर में, एंड दैट इज हेड्स ऑफ इनकम. हाउ मेनी हेड्स वी हैव? 5 हेड्स. पहले हेड का नाम क्या? सैलरी. छोटा छोटा बताने का पहले. सैलरी. दूसरा हाउस प्रॉपर्टी. तीसरा बिजनेस या प्रोफेशन. फोर्थ कैपिटल गेन, एंड लास्ट वन अदर सोर्सेज. ठीक है ना. ये समझ में आ रहा है? नाउ 14A जो है वो गार्डिंग सेक्शन है. गार्डिंग सेक्शन मतलब क्या बोलता है वो? एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम. ठीक है ना. एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम. आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इन रिलेशन टू इनकम नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम. मतलब ऐसा कोई एक इनकम जो टोटल इनकम में नहीं आता, उसका अगर आपने खर्चा किया होगा तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. मैंने क्या बोला समझा? तो आपका सोर्स टैक्सेबल इनकम में आना चाहिए. एग्जांपल इसका मैंने बहुत अच्छा आपको दिया था, हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन का दिया था. हमारे 2 डिवीजन है, एग्रीकल्चर है और एक कमर्शियल डिवीजन है. कमर्शियल डिवीजन इज टैक्सेबल डिवीजन, एग्रीकल्चर डिवीजन नॉन टैक्सेबल. हम हमेशा ट्राई करेंगे एग्रीकल्चर डिवीजन में ज़्यादा प्रॉफिट पार्क करने का बाय शिफ्टिंग द एग्रीकल्चर का एक्सपेंडिचर टू द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. समझ में आ रहा है? ये ऐसा करेंगे तो कौन रोकेगा? सेक्शन 14A रोकेगा हमें. ठीक है ना. दैट्स द रीजन इट इज अ गार्डिंग सेक्शन. देन फर्स्ट हेड स्टार्ट दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. ठीक है ना. पहला हेड हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है, विच स्टार्ट्स एट 15 एंड विच एंड्स ऑन 17. ठीक है ना. 15 to 17 है. 16 में डिडक्शंस होते हैं. उसमें का एक डिडक्शन मैंने आपको बताया था क्योंकि वो यूज होगा मुझे चैप्टर नंबर 1 में, एंड दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने अमाउंट का है? 50,000 का. ठीक है ना. 50 मिलता ही है. क्वेश्चन में नहीं बोला तभी भी देना है, एम्प्लॉयर ने नहीं बताया तभी भी देना है, एम्प्लॉय ने नहीं एम्प्लॉय को कहाँ से पता होगा उसको 50,000 का डिडक्शन मिलता है? वो तो हम बताएंगे ना उसको. ठीक है ना. तो आप ये नहीं पूछ सकते हो क्या लॉजिक है उसका, किस चीज का डिडक्शन मिलता है, कहाँ प्रूफ है? प्रूफ वगैरह नहीं होता. वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सबको मिलता है. ठीक है ना. क्यों मिलता है उसका लॉजिक मैंने बताने का ट्राई किया. आप जॉब पे जाते हो तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है ना. बस का एक्सपेंस होता है, ट्रेन का पास होता है, बेसिक एक्सपेंडिचर यू इनकर. सो हम एट एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन नहीं देते. इसलिए हमने क्या किया है? एक 50,000 का लमसम स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको दे दिया है. यहाँ तक ठीक है. आगे चलूँ. देन द अनदर हैज स्टार्टेड एट 22 एंड इट गोज अप टू 27. दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. टेक्निकली रेंटल इनकम को हम यहाँ पे टैक्स करते हैं. हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम को यहाँ पे टैक्स किया जाता है. मैंने बताया था ये पूरा का पूरा टॉपिक इस अजम्पशन पे बना है कि असेसी एक चोर है और असेसी अपना रेंटल इनकम जेन्युइनली शो नहीं करेगा. उस अजम्पशन पे पूरा चैप्टर बना है. इसको हम सार चैप्टर बोलते हैं. स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल भी लगाते हैं हम यहाँ पे. ठीक है ना. तो इन्होंने यहाँ पे डिडक्शन भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर का नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर का अगर डिडक्शन देते तो असेसी फिर से क्या करता? चोरी करना चालू हो जाता. तो हमने क्या किया फिर बताओ? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया. एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा तभी भी 30 मिलेगा, नहीं होगा तभी भी 30 मिलेगा. तो इस चैप्टर का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का है. पीजीबीपी में वी डोंट हैव स्टैंडर्ड डिडक्शन. पीजीबीपी में स्टैंडर्ड डिडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीजीबीपी में कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकती. हर बिजनेस यूनिक है और हर यूनिक बिजनेस को यूनिक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है. एंड दैट्स द रीजन हम बिजनेस के क्लाइंट से थोड़ा ज़्यादा पेमेंट इसलिए लेते हैं, सैलरी से कम लेते हैं, और बिजनेस वाले से हम ज़्यादा लेते हैं. और कितना ज़्यादा ले सकते हैं उसका भी कोई लिमिट नहीं है. किसी से 5,000 लेते हैं, किसी से 50,000 भी ले सकते हैं.
जस्ट टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि उसके कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर डिपेंड होता है कि भैया हमको कितना ब्रेन हमारा लगना है, ठीक है। तो बिजनेस साइड में बहुत सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। तो दैट इज सेक्शन 28 टू सेक्शन 44 DA, इफ यू रिमेंबर, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है ना। लाइफ में जब आप इतना करते रहते हो तो आपको नहीं लगता सैलरी कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ असेट आपने या कुछ ना कुछ वेल्थ आपने क्रिएट करके रखा होगा, क्योंकि आप जब प्रॉफिट करते हो, एक सेविंग्स करते हो, तो यू पार्क इट इन सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो आप लोग, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हो? प्रॉपर्टीज, मतलब कौन सी? लैंड भी ले सकते हो आप, बिल्डिंग ले सकते हो, और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, और बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो। और इसमें से हर इन्वेस्टमेंट से एक पैसिव इनकम क्रिएट होता है, पता है ना, एक पैसिव इनकम क्रिएट होता है। वो पैसिव इनकम कौन से हेड में टैक्स होगा? अदर सोर्सेस। पैसिव इनकम रे, पैसिव इनकम मतलब अभी आपने शेयर्स लिए तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है क्या डिविडेंड करने के लिए? नहीं करनी पड़ती ना, वो तो आपने खरीद के रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली मिलते रहेगा। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है, क्या मेहनत करनी है अभी आपको? कुछ मेहनत करनी है क्या? नहीं, वो पैसिव इनकम है। वो कहाँ पे टैक्स होगा? अदर सोर्सेस में। जो इनकम जनरेट होगा वो अदर सोर्सेस में होगा। लेकिन एक दिन आपके मन में आता है मैंने शेयर्स 1000 में खरीदा था, आज मार्केट में उसका प्राइस 5000 हो चुका है, लेट्स सेल इट ऑफ। अब आपने जो किया वो क्या है? ये ट्रांजैक्शन रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग है, तो इसको हम कैपिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और कैपिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी इनकम टैक्स में टैक्स लगता है। कौन से हेड में लगता है? खाली कैपिटल गेन हेड में लगता है, 45 से 55A। अगर आपने घर लिया, उसमें से रेंट कमाया, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। घर लिया, रेंट कमाया, कहां पे टैक्स होगा? घर ही बेच दिया, 2 करोड़ में लिया था, 5 करोड़ में बेच दिया, कहां पे टैक्स होगा? कैपिटल गेन में टैक्स होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? कैपिटल गेन का टैक्स का रेट याद रखोगे? हल्का सा देखो, ट्राई करो हल्का सा याद रखने के लिए। कैपिटल गेन का टैक्स का रेट लॉन्ग टर्म का इंडिया का रेट है 20%। याद रखने बोला तो लिख रहा है बटला, याद रखो ना। कोई भी अगर आपको फोन पे पूछता है कि कैपिटल गेन का टैक्स का रेट क्या है, मैंने अगर जमीन 2 करोड़ में ली और 5 करोड़ में बेच दी, तो गेन कितना हुआ? 3 करोड़ मान लेता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना है? 3 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट होता है वो इनकम टैक्स लॉ में स्पेशल रेट नहीं है। देयर इज नो स्पेशल रेट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, आपका जो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट होता है उसके हिसाब से टैक्स होता है। नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट मतलब इंडिविजुअल होगा तो स्लैब रेट बोलते हैं हम, ठीक है ना, स्लैब में वो लगता है। और अगर लॉन्ग टर्म अगर होगा, लॉन्ग टर्म मतलब आपने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आपने एसेट बेचा है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट इन कैपिटल गेन चैप्टर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म मतलब आपने अभी अभी रिसेंटली खरीदा होगा, रिसेंटली बेच दिया, ठीक है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल लॉ नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में बेचा उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा स्पेशल लॉ बनाया हुआ है, वो आपको कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर जो सेक्शन लगता है उसका सेक्शन का नंबर आपको याद रखना है, 112, 112, ठीक है ना, ये सेक्शन है। और इस सेक्शन का रेट कितना है? लॉन्ग टर्म का 20%। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कोई पूछता है टैक्सेबल कितना होगा इंडिया में, तो क्या बोलोगे आप? 20%। और शॉर्ट टर्म स्पेसिफाइड नहीं, तो कंपनी रहोगे तो 30% पे जाएगा, पार्टनरशिप रहोगे तो 30% पे जाएगा, इंडिविजुअल रहोगे तो स्लैब रेट में जाएगा, HUF रहेगा तो स्लैब रेट में जाएगा, फॉरेन कंपनी रहोगे तो 40% पे जाएगा। मतलब आपका जो टैक्स का रेट है, नॉर्मल टैक्स का रेट हम जिसको बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट का जो टैक्स का रेट बोलते हैं, वही टैक्स का रेट आपको एप्लीकेबल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। यही समझ में आ रहा है? जनरल नॉलेज के हिसाब से इतना याद रखेंगे, फिर इसको जाके मैं थोड़े टाइम के बाद चैलेंज करने वाला हूँ आज, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, अभी नहीं करेंगे। आगे चलो, जनरल नॉलेज ठीक है ना इतना, ओके। फिर कैपिटल गेन चालू होके चालू खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट हेड कौन सा है? सेक्शन 56 टू 59। ये कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपने आप में एक जीता जागता हेड नहीं है, ये हर हेड के साथ चलता है। क्योंकि सैलरी आई, आपने FD में रखा, क्या चालू हो गया? IFOS चालू हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका मेन सोर्स चालू हो जाता है ना इनकम कमाने का, आपका अभी तक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपका कोई मेन सोर्स ही नहीं है। अरे पैसिव तो तभी आएगा जब एक्टिव आना चालू होगा ना। तो अदर सोर्सेस की ब्यूटी क्या है पता है? अदर सोर्सेस हर हेड के साथ पढ़ते हैं हम। जब तक हम अदर सोर्सेस में पहुंचते हैं ना,
तब तक उसका 50-60% पढ़ के भी हो गया होता है, क्योंकि हम उसको हर हेड में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और वो जनरल नॉलेज वाला हेड है। मतलब मैं अगर आपको हेड नहीं भी पढ़ाऊं तभी भी आपको आना चाहिए। लॉटरी कौन से हेड में जाना चाहिए बताओ? आपको लॉटरी लगी, ड्रीम 11 में पैसा लग गया, कौन से हेड में जाएगा? क्या आपका सैलरी है वो? क्या आपका रेंटल इनकम है? क्या आपका बिजनेस है? क्या आपने कोई ज़मीन बेची? नहीं तो कौन से हेड में जाएगा? ये लॉजिकल है। मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको चार्जिंग सेक्शन उसका, मैंने पढ़ाया नहीं तो आपको खुद से आ रहा है ना। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपके फ्रेंड ने, 50,000 तक टैक्सेबल नहीं मैंने बता दिया है, लेकिन 51,000 दे दिया तो पूरा टैक्सेबल होगा। क्या गिफ्ट लेना सैलरी है? क्या हाउस प्रॉपर्टी है? क्या बिजनेस है आपका? क्या आपने कोई प्रॉपर्टी दी थी? तो कौन से हेड में गिफ्ट टैक्स होगा? अदर सोर्सेस में। मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन नहीं पढ़ाया अभी तक वहां का, लेकिन आपको खुद से ही वो आएगा कि हाँ ये तो सर इनकम अदर सोर्सेस में जाना चाहिए। तो आपके पास जब क्लाइंट आता है, अपनी डॉक्यूमेंट लेकर आता है और आपको दिखता है कि इसने एक्टिव इनकम भी कमाया और पैसिव इनकम भी कमाया, और आप जब विनमैन ओपन करके उसका रिटर्न भरने जाते हो तो आपको अदर सोर्स हेड टिक करना ही पड़ता है, क्योंकि अदर सोर्स में कुछ ना कुछ तो डालने मिल ही जाता है आगे जाके। तो बाय डिफॉल्ट वी सिलेक्ट अदर सोर्स। समझ में आ रहा है आपको? 99% केसेस में अदर सोर्स होता ही है। कोई नहीं तो दुनिया में किसी ना किसी का सेविंग बैंक अकाउंट तो होगा ही ना यार। सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर तो इंटरेस्ट होता ही ना। सेविंग बैंक तो उनका भी होता है जिनके पास पैसे नहीं होते, जैसे आप ना, आपको भी तो मिलता होगा ना 12 रुपये 18 रुपये इंटरेस्ट तो मिलता ही होगा क्वार्टरली। तो वो इनकम है कि नहीं है? वो इनकम है। वो कहाँ पे, कौन से हेड में टैक्स होगा? अदर सोर्स में टैक्स होगा। आपने भरा कभी टैक्स? नहीं भरा। नालायक लोगों, देखो पैसे कमा के 12 रुपये पैसे कमा के आपने टैक्स नहीं भरा। तो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट का एक डिडक्शन याद रखोगे। सेविंग डिडक्शंस भी होते हैं ना लॉ में, जैसे अभी हमने बोला सैलरी में 50,000 का डिडक्शन होता है, हाउस प्रॉपर्टी में 30 का होता है, पीजीबीपी में एक्चुअल खर्चे का होता है, कैपिटल गेन में जो कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस होगी? कॉस्ट प्राइस। अरे कभी खरीदा होगा तभी तो बेच रहे हो ना आज, वो माइनस होगी। तो ऐसा हर हेड में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डिडक्शंस होते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना होता, आपको खाली सेविंग बैंक में पैसे रखने होते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट एनकरेज कर रहा है कि रखो सेविंग बैंक में, सेविंग बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि सेव करो। तुम उसको गूगल पे के लिए यूज करते हो, खर्चे करने के लिए। उसका नाम देखो ना क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट। उसका मेन पर्पस क्या है पता है? पैसे खर्चे मत करो, उस अकाउंट में सेव करो, ठीक है ना। वो एक्सपेंस बैंक अकाउंट नहीं है, उसका नाम क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट नाम है। और तुम लोग उसको कैसे यूज करते हो? खर्चा करने के लिए। गवर्नमेंट बोलता है ऐसा ना करो, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करो, थोड़े पैसे कमाओ, आपको 10,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, 10,000 रुपए तक। लेकिन ये IFOS में किधर भी नहीं लिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं लिखा है। एक चैप्टर आता है जिसका आज हम शुरू करने वाले थोड़ा डिस्कशन, 80C से लेके 80U तक। 80C से लेके कहां तक? 80U तक। उसको हम बोलते हैं डिडक्शंस। क्या बोलते हैं? उसमें का एक डिडक्शन है 80 टटा, TTA। कौन सा डिडक्शन है? सेक्शन 80 TTA। वो कितना डिडक्शन देता है? 10,000 तक का। मतलब अगर आपने 7,000 इंटरेस्ट कमाया होगा तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 7,000। ऐसा तो नहीं करेगा ना गवर्नमेंट कि भाई 7,000 तो वो ले ले और 3,000 मेरे से एक्स्ट्रा ले ले। एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं देगा ना आपका। आपको मिला कभी 80 TTA में डिडक्शन? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी उतने या तो रिटर्न ही नहीं भरा होगा, या डिडक्शन लेने तक का इतना इंटरेस्ट कमाया भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्या ही माइनस करेगा आपका, ठीक है ना। तो 80 TTA करके होता है। अच्छा, मैंने 13,000 का इंटरेस्ट कमाया होगा तो 13,000 कमाया तो 13,000 अदर सोर्स में ऐड तो हो जाएगा, लेकिन बाद में 80 TTA कितना माइनस करेगा? 10,000। समझ में आ रहा है आपको? बाद में करता है वो, उधर नहीं करता, ऑन द स्पॉट नहीं करता, वो हेड के अंदर नहीं है, हेड के बाहर है, ठीक है ना। इसलिए उसका नाम होता है ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल। पहले ग्रॉस टोटल करना होता है पांचों हेड का, उसमें से वो डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर इतने जब हेड खत्म हो गए थे तो मैंने आपको बताया था सर ऐसा खाली हेड्स की बात नहीं है। हेड्स खत्म होने के बाद ये चैप्टर 4 में दिखे हैं सारे हेड्स ऑफ इनकम। कहाँ पे लिखे? चैप्टर 4 में। ऑब्वियसली उसके बाद क्या चालू होगा? इनकम टैक्स का चैप्टर 5। मैंने कल बताया था नहीं आपको, लेकिन आज बता रहा हूँ। चैप्टर 5 चालू होगा। चैप्टर 5 में क्या लिखा है देखो, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेस्ड टोटल इनकम। किसी और का इनकम आपके इनकम में जोड़ रहे। क्यों? किसी और के इनकम के ऊपर तो कोई और टैक्स भरना चाहिए था,
ऐसे ही चलते फिरते किसी का भी इनकम पकड़ के आपकी इनकम में जोड़ेगा क्या इनकम टैक्स? नहीं। पहले आपने क्या किया होगा? अरे पहले आपने क्या किया होगा? पहले आपने चोरी की होगी, और फिर ये क्या कर रहे हैं? एंटी चोरी कर रहे हैं ना। पहले आपने अपनी वाइफ के नाम पे एफडी रखी, वाइफ कुछ करती नहीं है, हाउस वाइफ है, आपने अपने नाम पे एफडी रखी होती तो हायर अमाउंट पे टैक्स होती, तो आपने क्या कर दिया? स्मार्टली वाइफ के नाम पे एफडी रखी, और आपको लग रहा है कि अभी वो डिपार्टमेंट पकड़ेगा नहीं। अरे भैया, जिसका एक्टिव इनकम नहीं है और उसका पैसिव इनकम आना चालू हो गया, मतलब जिसका पहले 4 हेड में इनकम हुआ ही नहीं, डायरेक्टली आईएफओएस चालू हुआ, तो सिस्टम पागल है क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझ रहा है? जिसका एक्टिव इनकम ही नहीं है उसका पैसिव कैसे चालू होगा? ऑब्वियसली किसी ने उसके नाम पे रखा होगा, तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा, अरे भैया ये मैडम के नाम पे 1 करोड़ की एफडी है, लेकिन ये मैडम ने आज तक जिंदगी में कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, मतलब वो पहला वाला 1 करोड़ जो एफडी रखा हुआ है वो कभी असेस हुआ ही नहीं होगा इनके नाम पे, तो ये कहां से आया 1 करोड़? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, फिर उनको नोटिस जाएगी, बताओ ये सोर्स कहां से लाया आपने, ठीक है ना। फिर नोटिस का रिप्लाई देगी मैडम कि अरे हमारे हस्बैंड ने हमको दिया था, तो हस्बैंड ने क्यों दिया था? फिर आइडेंटिफाई होगा कि हस्बैंड हिक्का है, मैडम लिखा है हाई इनकम क्लास एंड लो इनकम क्लास, समझ में आ रहा है? और ये दोनों साथ में आके क्या करे? गवर्नमेंट को चुना लगाने का ट्राई कर रहे। जिस दिन ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसका सोल पर्पज माना जाता है कि आपने टैक्स चोरी के लिए किया है, और आपके ऊपर क्लबिंग लगता है। क्या लगता है? तो हमने याद ही कैसे रखा है इसको? क्लबिंग ऑफ इनकम। 60 पे चालू करेंगे, 65 पे एंड करेंगे। मोस्ट कॉमन जो मार्केट में होता है वो स्पाउस को यूज किया जाता है, मतलब वाइफ या हस्बैंड को यूज किया जाता है, एंड सेकेंडली माइनर चाइल्ड को यूज किया जाता है। माइनर चाइल्ड के नाम पे भी अगर आप इनकम बुक किया आपने, तो माइनर चाइल्ड नहीं टैक्स भरेगा, पेरेंट टैक्स भरेंगे, और पेरेंट में भी कौन सा पेरेंट? हिक्का, जिसका इनकम हाई होता है। ये समझ में आ रहा है आपको? इस चैप्टर का पर्पज क्या है? ये चैप्टर एंटी चोरी चैप्टर है, एंटी इवेजन चैप्टर है। सर फिर मैंने बोला कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तभी नहीं पकड़ा जब आपने ब्लैक मनी कमाई थी, लेकिन आपने 15 साल से 20 साल से बहुत ब्लैक मनी कमाई है और बहुत ज़्यादा स्टेट बना के रखा है, आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है, आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और इसका हिसाब मिल नहीं रहा है कि ये आया कहाँ से आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ब्लैक में कमाया होगा। और जब इसको पकड़ा जाते हो आप, या तो आप पकड़े जाओगे, या तो आपको रातों की नींद ही नहीं आ रही है, नींद हराम हो गई आपकी, आपको टेंशन आता है रोज, आपको जब भी बेल बजती है आपकी फट जाती है कि आ गया क्या इनकम टैक्स, आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो। तो फिर आपने डिसाइड किया अरे भाड़ में गया है वेल्थ, मेरे को नहीं चाहिए, हाँ मैं टैक्स भरने के लिए रेडी हूँ। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए और आपने बता दिया साहब मेरे पास बहुत सारा ऐसा इनकम है, बहुत सारा वेल्थ है जिसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मैं इसके ऊपर टैक्स भरना चाहता हूँ। या तो आप गए, या तो नोटिस की वजह से गए, डर के, जो भी है, आप गए, आपका इनकम मिल गया उनको, और उसका आपके ऊपर क्या नहीं है? एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जो इसका आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो कि आया कहां से। एक्सप्लेनेशन किसका देना होता है? ये आया कहां से? ये आपके पास, आपके घर पे 100 करोड़ है, कहां से लाए ये आपने? आप बता रहे मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट बोलता है तो फिर इसको अनएक्सप्लेन बोलेंगे। आपने बोला बोल दो अनएक्सप्लेन, और अनएक्सप्लेन बोलो। देखा क्या वो नोटिस विजय सर से मांग के 1.5 करोड़ का नोटिस देखा आपने? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था इसमें से एक सेक्शन में आया हुआ है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट में। नहीं देखा ना? कितने नालायक बच्चे हो बताओ। हाँ प्रैक्टिकल देखो ना, आपके पास नोटिस है देखने के लिए, इतने लकी हो आप, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसिंग सीए फर्म है तो आपको नोटिस देखने मिलता है। नहीं तो बाकी बच्चे खाली थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं कि ऐसा कोई सेक्शन होता है, नोटिस नहीं आता, थोड़ी ना क्या नोटिस आता है। देखो ना जाके कैसा आता है नोटिस। और नोटिस किसी वैसे मुंबई पुणे ऐसे बड़े सिटी के लोगों को नहीं आया है, हमारे गांव के गडिंगलज के पर्सन को आया है, ठीक है ना। तो सोचो अगर यहां तक अगर ये नोट सेक्शन पहुंच रहा है तो ये कहां कहां जा सकता है आने वाले पीरियड में, ठीक है। तो इसमें टैक्स का रेट ना बहुत अच्छा है। अच्छा इसके टैक्स के रेट ना कहां पे मैं आपको बताऊं, याद रखोगे? देखो जरा ट्राई करो। लॉन्ग टर्म कहां पे है? अभी बताया मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कौन से सेक्शन में है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स किधर है? टैक्स का रेट 112। मैंने याद रखने बोला, याद रखने, रखो याद। 112 में क्या टैक्स का रेट है इंडिया में? मैं क्लाइंट हूँ आपका, मैं पूछ रहा हूँ आपको फ़ोन करके, साहेब ज़मीन विकले, हाँ कितनी रेट होती टैक्स होना? तो आप पहले क्या पूछोगे? लॉन्ग टर्म है कि उसको समझेगा क्या ये? नहीं, आप पूछने का 2 साल से इसके मालिक थे, 2 साल खरीदने के बाद 2 साल के बाद बेचा है कि 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म,
जमीन के लिए अलग ऐसा रूल होता है, ठीक है ना। दो के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म होगा तो साहब कितने पे टैक्स होगा, और शॉर्ट टर्म होगा तो जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है उसके हिसाब से टैक्स होगा। बोलेगा नॉर्मल क्या होता है, आप बोलेगा सर आप सब आपको ही बता दूंगा, तो हम यहाँ पे क्या करने बैठे हैं, एक काम करो आप अपने पेपर भेजो, इंडेक्स 2 वगैरह डॉक्यूमेंट भेज दो, सेल डीड भेजो, परचेज डीड भेजो, सब कुछ भेज दो, हम करेंगे और हमारा बिल इतना होता है साहब, ठीक है ना। तो आपको टैक्स का रेट खाली याद रखने बोल रहा हूँ मैं। लॉटरी का याद है आपको, लॉटरी क्या रेट पे टैक्स होती है, सेक्शन बताओ। 115 BB याद आ रहा है, 115 BB में कितना टैक्स का रेट होता है, 30%। 115 BB में डबल बी, बड़ा बाजीगर मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, 30% का टैक्स का रेट है, ठीक है। उससे थोड़ा आगे जाके मैंने बताया था BBH करके एक सेक्शन आया हुआ है, नया सेक्शन है, न्यू सेक्शन एकदम फ्रेश, 115 BBH। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे पता है आपको, दिल्ली से एक केस आया था जिसमें क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग किया था, उनका टैक्स हमने भर के दिया, हाँ, उसको BBH में हमने ऑफर किया है। BBH का टैक्स का रेट भी 30% है, तो BB याद होगा तो BBH याद हो जाएगा, एक ही तो नया अल्फाबेट ऐड हो गया, 115 तो याद होना ही चाहिए, 115 में स्पेशल रेट होते हैं, याद रखो, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। तो BBH का रेट भी कितना है, 30%। उसके थोड़ा पीछे अगर आप जाओगे तो एक सेक्शन आता है BBE, समझ में आ रहा है, ई समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट को 68 69 की सीरीज में कुछ भी निकलता है ना तो ऑटोमेटिकली ई बाहर से आता है, ठीक है ना। तो 115 BBE डबल BE, वहां पे टैक्स का रेट है 60%, 60 प्लस 25% का मैंडेटरी सरचार्ज, वो 75% हो जाता है फिर, प्लस 4% का सेस, तो 78% लगता है टैक्स का रेट। और वो कैसे लगता है वो देखने के लिए वो आप 1.5 करोड़ की नोटिस देखो कि आइए, जो हमारे मतलब हमारे पास नोटिस लेके क्लाइंट आया, हमारे क्लाइंट को नहीं आई है, हमारे पास नोटिस लेके क्लाइंट आया, उसकी एक बार नोटिस देख लो आप लोग। क्रिप्टो करेंसी में ही उन्होंने ट्रेड किया है और उसका उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो पैसे उन्होंने लाए कहाँ से थे। ट्रेडिंग किया हो तो पकड़े गए, लेकिन वो ओरिजिनल पैसे कहाँ से लाए उनके पास होगा एक्सप्लेनेशन। उन्होंने इनकम टैक्स को नहीं दिया और वो बात कर रहे हैं, खाली डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। डिपार्टमेंट को बातें नहीं चाहिए, वहां कोई बातें सुनने बैठा नहीं है आपका, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे कि ये सोर्स कहाँ से आया था, बैंक अकाउंट लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी बातें है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये 68 69 की एक सीरीज मैंने आपको बताई जो डी तक जाती है। फिर मैंने आपको कल बताया था कि लाइफ में कभी कभी लॉसेस होते हैं और सारे लॉसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि लॉस होता है तभी तो इंसान को गेन का वैल्यू समझ में आता है। गवर्नमेंट कभी भी लॉस को इग्नोर नहीं करता, कुछ लॉसेस को करता है, बिल्कुल करता है। जो लॉसेस हरामखोर लोग बनाते हैं, जैसे सट्टा लगाते हो, गैम्बलिंग करते हो, बेटिंग करते हो, वैसे लॉसेस का सेट ऑफ मिलना चाहिए क्या? नहीं। क्रिप्टो करेंसी में लॉस किया आपने, उसका सेट ऑफ मिलता है क्या? नहीं। तो देयर आर फ्यू लॉसेस जिसका गवर्नमेंट सेट ऑफ नहीं देता, नेगेटिव लॉसेस बोलते हैं हम उनको। लेकिन जो लॉसेस बिजनेस के हैं, मेनली बिजनेसेस के हैं, शेयर्स के हैं, उनका हम आपको सेट ऑफ देते हैं। कितने साल तक देते हैं? इस 8 साल तक हम वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये संदेश को फ़ोन करके बात करना, बार बार फ़ोन कर रहा है मेरे को, ठीक है ना। अभी नहीं, ब्रेक दूंगा तो बात करना कि सर लेक्चर में रहते बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक चलो आगे। 70 to 80, यहाँ तक आप कौन से चैप्टर में आए हो इनकम टैक्स में? देखो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी चैप्टर में थे आप। चैप्टर नंबर 2 बेसिस ऑफ चार्ज, जहाँ तक सेक्शन 9 खत्म होता है, ये सेक्शन 10 है। 10, 11, 13 यहाँ तक होता है। ये 14 से लेके 59 तक जाता है। यहाँ पे 14 से लेके 59 चैप्टर 4, सारे हेड्स ऑफ इनकम चैप्टर 4 में है। चैप्टर 5 में क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम, 60 to 65, ठीक है ना। एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये दो जो है वो 68 पे चालू होते हैं और 80 पे खत्म होता है। 80 पे 68 to 69 डी पे एग्रीगेशन ऑफ इनकम, मतलब वो ब्लैक मनी मैंने जो बताया था वो पकड़ा जाता है। और 70 to 80 में क्या है हमारा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो याद रखो, कभी भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बात करोगे तो कौन सी सीरीज आपके मन में आनी चाहिए? कोई भी लॉस अगर मुझे आप आके पूछोगे, सर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो, इसका सेट ऑफ मिलेगा क्या? तो मैं आपको कौन सी सीरीज देखने बोलूंगा? 70 to 80 का सीरीज देखने बोलूंगा। ये समझ में आ रहा है? ये चैप्टर नंबर 6 है, ओके। और इसके बाद ये चैप्टर चालू होता है 6A,
इसको बोलते हैं 6A। अब 6A को 6 नहीं लिखते, VI लिखते हैं, क्योंकि ये रोमन नंबर है, मैंने पहले ही बताया था। तो इसको ही हम बोलेंगे चैप्टर नंबर 6A। इसका मैंने आपको सीरीज बताया था, बहुत बड़ा सीरीज होता है, याद आ रहा है आपको? ATC, ATCCC ऐसा होता है ना। अब चैप्टर नंबर 6A यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था, अभी भी है, ऐसे नहीं कि अभी नहीं है। लेकिन आप जिन्होंने ITR भरे हैं उनको पता है, जो डिफॉल्ट रिजिम सिलेक्ट करते हैं 115 BAC सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डिफॉल्ट रिजिम में इसमें के मैक्सिमम सेक्शंस का डिडक्शन नहीं मिलता। इसमें के 3 या 4 ही सेक्शंस अभी बचे हैं जिनका डिडक्शन डिफॉल्ट रिजिम में भी अवेलेबल है। तो मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको बोलूंगा बाद में इसको अप्लाई मत करना, ठीक है। ये उसी को अप्लाई करना जिसने डिफॉल्ट रिजिम छोड़ी है, मतलब ऑप्शनल रिजिम में गया हुआ है। ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम आप समझिए। डिफॉल्ट रिजिम मतलब न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम मतलब ऑप्शनल रिजिम। O फॉर ओल्ड, O फॉर ऑप्शनल, ठीक है ना। तो वो ऑप्शनल है, ओल्ड रिजिम ऑप्शनल है और न्यू रिजिम अभी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होती है। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता। बाय डिफॉल्ट यू डोंट गेट चैप्टर 6A का डिडक्शन। आर यू गेटिंग दिस? आप थोड़ा इस साइड आ सकते हो क्या? बाय डिफॉल्ट यू डोंट गेट चैप्टर 6A का डिडक्शंस डिफॉल्ट रिजिम में। लेकिन चलो यहां पे बात करेंगे, ये सेक्शन का सीरीज लिखो आप लोग जल्दी। आपने लिखा नहीं है, ATC से लेके ATU तक चलता है। सेक्शन ATC टू ATU, इसको हम बोलेंगे डिडक्शंस फ्रॉम GTI। GTI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सारे हेड्स का टोटल करके आफ्टर सेट ऑफ। इसको ही आप प्यार से क्या बोलते हो? चैप्टर 6A डिडक्शंस भी बोला जाता है। चैप्टर 6A डिडक्शन, 6A डिडक्शंस फ्रॉम GTI। ATC पे चालू होता है, ATU पे खत्म होता है। इनकम टैक्स में 3 टाइप के क्लास आप मेनली याद रखो। कुछ लोग लोअर क्लास इनकम होता है, कुछ लोगों का मिडिल क्लास होता है और कुछ लोगों का हायर या रीच क्लास होता है। ये याद रख सकते हो 3 कैटेगरी, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक हायर क्लास या रीच क्लास, जैसे भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा टैक्स किससे लेना चाहिए? हायर क्लास। तो यहां से हम टैक्स भी लेते हैं प्लस सरचार्ज भी लेते हैं, टैक्स और सरचार्ज। और ये 50 लाख के एनुअल इनकम के बाद चालू होता है। 50 लाख तो आपको कमाना पड़ता है। तो आई विश यू दैट वन डे यू शुड बी पेइंग सरचार्ज, ओके। तो यू शुड बी इन दिस क्लास, टैक्स प्लस सरचार्ज। जो मिडिल क्लास होते हैं वो लोग क्या भरते हैं? खाली टैक्स, वो लोग सरचार्ज नहीं भरते। और जो लोअर क्लास होते हैं वो लोग टैक्स भी नहीं भरते। लेकिन टैक्स नहीं भरने का तरीका जो होता है ना इनकम टैक्स में, वो होता है रिबेट क्लेम करने का। क्या क्लेम करने का? अब रिबेट इज अ अकाउंटिंग वर्ड, ठीक है ना। रिबेट का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। तो ये रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट याद रखो, कभी भी मिडिल क्लास नहीं डिमांड करते और हायर क्लास नहीं डिमांड करते। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने देखा है क्या? कोई बहुत अमीर बंदा 4 व्हीलर से उतर के बार्गेनिंग कर रहा है, तो ये बार्गेनिंग का आदत किसको होता है? हाँ, मतलब लोअर क्लास को। बार्गेनिंग इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन ठीक है, मैं आपको खाली एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, उससे लिंक करना चाहता हूं। करने के लिए तो करोड़पति भी बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनली होता है। मतलब वो करोड़पति बनके भी फंडामेंटली गरीब ही है, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास जो रहता है या हायर क्लास होता है, वो बार्गेनिंग या डिस्काउंट या रिबेट क्लेम नहीं करते। तो रिबेट कौन क्लेम करता है, याद रखने का आपको। रिबेट कौन क्लेम करता है? जो लोअर क्लास है। अब लोअर क्लास का डेफिनेशन दोनों रिजिम में अलग अलग डेफिनेशन है। एक मैंने क्या बोला, एक डिफॉल्ट रिजिम होता है जो न्यू रिजिम है, और एक होता है ऑप्शनल रिजिम जो ओल्ड रिजिम है। ओल्ड रिजिम में हम लोग जो लोअर क्लास वाले लोग बोलते थे, लोअर क्लास, वो होते थे अप टू 5 लाख रुपीज।
जिनका इनकम कितना है, अप टू 5 लाख। जिनका इनकम अप टू 2.5 लाख था वो लोग तो रिटर्न भी नहीं भरते, उनको तो मैंने बता ही दिया बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनसे तो बात ही मत करो आप। लेकिन जिसका इनकम 2.5 लाख के ऊपर है और 5 लाख के नीचे है, 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख के नीचे, वो लोग क्या भरते हैं, टैक्स रिटर्न भरते हैं, ITR भरते हैं, लेकिन उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती। जैसे मुझे आपको अगर हल्का सा एग्जांपल देना है, हल्का सा दे रहा हूं, बाद में हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। अगर 2.5 लाख तक इनकम होता है तो टैक्स ही नहीं आता। 5 लाख तक का इनकम होगा तो कैसे टैक्स आएगा? 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना परसेंट लगता है? 5% ना। 2.5 लाख तक नील, तो टोटल 5 लाख जिसका इनकम होता है उसका 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगता, तो बचा कितना अभी? अनदर 2. अरे 5 लाख के 2 टुकड़े हो गए ना, 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगा। तो अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक गैप कितना है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 5%, अगर आप 2.5 लाख का 5% निकालते हो तो आएगा कितना बाबा? 12,500 आएगा। हम बोलते सर हम अभी तो कमाना चालू हुए, छोड़ दो ना सर। गवर्नमेंट बोलता है जाओ, छोड़ दिया, आपको 12,500 का रिबेट मिलता है। समझ में आ रहा है? ओल्ड रिजिम में कितना रिबेट मिलता है? 12,500 का। लेकिन अगर किसी का इनकम 4.5 लाख है, किसी का इनकम कितना है? 4.5 लाख है। 4.5 लाख में का 2.5 लाख तो चला ही गया, इसके ऊपर तो नील लगना है। बचे हुए 2 लाख के ऊपर कितना लगना है? 5%। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 होता है। इसको 12,500 का डिस्काउंट दोगे क्या आप? और 2,500 रिफंड दोगे क्या? नहीं। तो इसको कितना रिबेट मिलेगा? बोलो ना। 10,000 का ही मिलेगा, क्योंकि ये 12,500 स्टैंडर्ड रिबेट नहीं है, इसको हम मैक्सिमम रिबेट बोलते हैं। मैक्सिमम रिबेट मतलब समझता है ना आपको, कि मैक्सिमम आपको 12,500 मिलेगा। आपका टैक्स का अमाउंट अगर उससे ज्यादा होता तो 15,000 टैक्स का अमाउंट होता तो 12,500 माइनस हो जाता, बचा हुआ 2,500 गवर्नमेंट आपसे ले लेता। यहां तक क्लियर है? तो मैंने टेक्निकली 5 लाख तक टैक्स लगाना है क्या? बताओ ना। रिबेट के वजह से मेरा 5 लाख की इनकम, वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको पता है ना रिबेट के वजह से 5 लाख तक क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। तो आपका एक आइडिया आप गवर्नमेंट को नहीं दे सकते थे क्या? क्यों ये झक मराने के लिए नया सेक्शन लाया 87A? आपको गुस्सा नहीं आता क्या? आप डायरेक्टली बोलते ना 5 लाख तक ही टैक्स नहीं लगने वाला, टैक्स कंप्यूट करके माइनस क्यों कर रहे हो? अरे आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप ऐसा ही करते ना। जब गवर्नमेंट को 5 लाख तक टैक्स नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही बढ़ा देता। देश में एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख का है। फिर गवर्नमेंट बोलती 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा। फिर बोलती टैक्स तो लगेगा लेकिन उतना हम माइनस कर देंगे। ऐसा ही आपके मन में आ रहा है कि नहीं? मैंने भी वही बोला, माइनस होता है। तो फंडामेंटली आप टैक्स 5 लाख तक नहीं भरते। तो आप बोल रहे हो इतना इनडायरेक्टली बात करने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्टली बोल देते ना कि 5 लाख तक टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख तक टैक्स नहीं बोल दिया होता तो इसका बेनिफिट मिडिल क्लास को भी मिलता और इसका बेनिफिट हाई क्लास को भी मिलता ना। अभी मिडिल क्लास को कितना बेनिफिट मिल रहा है? ओनली 2.5 लाख टैक्स फ्री इनकम। हायर क्लास को भी कितना मिलता है? 2.5 लाख का टैक्स फ्री इनकम। समझ में आ रहा है? तो इनको रिबेट नहीं मिलती। अगर हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 5 लाख करते तो जो बेनिफिट गरीब लोगों के लिए लाया गया है वो बेनिफिट अमीर लोगों को भी मिलता, इसलिए गवर्नमेंट ने रिबेट लाया। समझ रहे आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो रिबेट सबको नहीं मिलता, रिबेट खाली गरीब लोगों को मिलता है, लो क्लास इनकम लोगों को मिलता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अरे मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को भी मिलता है। कौन सा? 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सबको मिलता है, आप कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन रिबेट सबको अवेलेबल नहीं है। यहां तक क्लियर है? थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो रहा है रिबेट का क्या है, क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने? लॉजिक बताने का मैंने ट्राई किया, बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए गवर्नमेंट ने रिबेट, तो रिबेट आपको याद रखना है। रिबेट या कॉन्सेप्ट ये लगाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट रिबेट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको एसएससी का क्लास याद रखना पड़ेगा। इट इज ओनली फॉर लोअर क्लास।
तो लोअर क्लास हम ओल्ड रिजिम में किसको बोलते थे, जिसका इनकम कितना है 5 लाख तक का है, उसको हम 12,500 का रिबेट देते थे। अब डिफॉल्ट रिजिम में, नए रिजिम में 115 BAC में 115 BAC, इसको ही क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट रिजिम बोलते हैं, जहां पे 3 लाख रुपए का टैक्स चलता है। 3 लाख तक नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%। वो जो स्लैब चलता है वहां पे रिबेट मिलता है 7 लाख तक। कितना मिलता है, तो 7 लाख तक आप रहोगे तो आपको कौन सा क्लास बोला जाएगा, लोअर क्लास, ठीक है ना। लेकिन टैक्स लगना कहां से चालू हो जाता है, 3 लाख के बाद, ठीक है ना। तो मैं आपको ये स्लैब पहले यहाँ पे कहीं पे तो मजाक मजाक में लिख के बताता हूँ, फिर से सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना। 3 लाख तक नील, ठीक है ना, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, ठीक है ना, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, 15 लाख प्लस 30%। समझ में आ रहा है आपको, यह ऐसा टैक्स का रेट है। मुझे आपको बताना है 7 लाख का टैक्स कैसे निकलेगा। किसी का 7 लाख का इनकम होगा तो टैक्स कैसे निकलेगा, 7 लाख का टैक्स होगा तो अप टू 3 लाख नील होगा, फिर 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट ऑफ 5% होगा। तो इसमें गैप कितना आ रहा है, 3 लाख का 3 लाख का 5% कितना, 15,000 आएगा ना, समझ में आ रहा है। और 7 लाख का मुझको टैक्स चाहिए, तो बचा कितना, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 1 लाख। ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है, ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है। 6 लाख टू 9 लाख 10% लगता है, तो जो लास्ट का टुकड़ा बचा आपका 1 लाख, उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना लगेगा, 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, ठीक है ना। तो ये 10, तो टैक्स कितना हुआ, 25,000 का टैक्स हो गया। तो कोई रिबेट गेस कर सकता है क्या, अगर डिफॉल्ट रिजिम में आपका इनकम 7 लाख तक होगा तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, 25,000। तो ओल्ड रिजिम में रिबेट कितना मिलता है, 12,500, और न्यू रिजिम में रिबेट कितना मिलता है, 25,000। इसके वजह से होता क्या है, जिस भी एसएससी का इनकम अप टू 5 लाख है ओल्ड रिजिम में, उसको टैक्स भरने नहीं आता, और न्यू रिजिम में ही वो बेनिफिट एक्सटेंड किया गया अप टू 7 लाख। समझ में आ रहा है, क्योंकि 12,500 का रिबेट डायरेक्टली कितना हो जाता है न्यू रिजिम में, 25,000 का हो जाता है। याद रख पाओगे थोड़ा सा ही, क्योंकि आपके ऑफिस में आपको अभी ITR भरने में काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया, अदरवाइज इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए। आपको याद भी नहीं रखना, भूल जाओगे तभी भी चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन के बाद वो याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। मैं जब आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको वो याद हो जाएगा। अभी खाली जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि इस सीरीज के बाद एक नई सीरीज चालू होती है जिसको बोलते हैं हम 87A, जिसका नाम क्या है, रिबेट, ठीक है ना। रिबेट मतलब डिस्काउंट इनकम टैक्स से। कौन से क्लास को मिलता है, खाली याद रखो, ये लोअर क्लास को मिला जाता है। दिस इज ओनली फॉर लोअर क्लास। लोअर क्लास का डेफिनेशन अलग अलग लॉ में अलग अलग है, मतलब डिफॉल्ट रिजिम में इसको 7 लाख तक मिलता है और ऑप्शनल रिजिम में ये 5 लाख तक मिलता है। रिजिम के हिसाब से चेंज हो जाता है। डिस्काउंट मिडिल क्लास को और रिच क्लास को नहीं मिलता, याद रखो। तो रिच क्लास की कब चालू होता है, मैंने बताया था आपको। रिच क्लास कब चालू होता है, 50 लाख के बाद। 50 लाख के बाद कौन सा क्लास चालू हो जाता है, रिच क्लास चालू होता है। उनको क्या लगता है, सरचार्ज, ठीक है ना। रिबेट कहां तक मिलता है, 7 लाख तक। समझ में आ रहा है। तो 7 लाख से लेके 50 लाख वाले क्लास को क्या बोलेंगे, मिडिल क्लास। 7 लाख के बाद कौन सा क्लास चालू हो जाता है, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की बात सुनो, मिडिल क्लास को ना गवर्नमेंट डिस्काउंट देता है ना सरचार्ज की पनिशमेंट देता है। समझ में आ रहा है। आप मिडिल क्लास हो, आप खाली टैक्स भर दो, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही कोई बेनिफिट है। इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंडस्ट्री में जो है वो मिडिल क्लास है, ठीक है ना। लोअर क्लास वाले इसलिए खुश है क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने दुनिया भर के फैसिलिटीज बना के रखे। राशन कार्ड पे उनको खाना फ्री मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन फ्री मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कंसेशनल रेट पे मिलता है, ठीक है ना। सब कंसेशन सब फ्री। किसको करके रखा है, लोअर क्लास को।
रिच क्लास को सब कुछ चार्जेबल है, सब कुछ है, लेकिन उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो लोग रिच है। अब तड़प कौन रहा है? मिडिल क्लास। समझ में आ रहा है ना? वो ढंग से अमीर है ना अच्छे से गरीब है, ठीक है ना? तो उनको गवर्नमेंट ना डिस्काउंट दे रहा है ना कोई बेनिफिट दे रहा है। दे आर ओनली पेइंग टैक्सेस एंड दे फील वेरी डिसअपॉइंटेड इन द कंट्री। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड क्लास जो है हमारे देश में वो मिडिल क्लास है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है? तो जिसका इनकम 8 लाख का होता है उसको कौन सा क्लास लग गया? उसको रिबेट मिलेगा क्या? और जिसका इनकम 7 लाख है वो लोअर क्लास, उसको रिबेट मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? इधर फर्क खाली 1 लाख का है, लेकिन इसको 25,000 का डिस्काउंट देने वाला है गवर्नमेंट, और इसको 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं है, फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स है। क्लियर है? तो जिसका इनकम 8 लाख होता है उसका वो प्लानिंग करके अपने पास से क्या करवा के लेता है? कुछ तो करो सर, और इसको 7 लाख के नीचे लेकर आओ। 7 के नीचे आ जाएगा तो 25,000 बचेगा, मतलब डायरेक्टली जीरो हो जाता है फिर इनकम, ठीक है ना? डायरेक्टली जीरो। 8 लाख के ऊपर टैक्स कितना लगेगा बताओ? किसी का इनकम 8 लाख होगा या 9 लाख कर दूं? 9 लाख के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? अप टू 3 लाख जीरो, 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट ऑफ 5% 15,000 आएगा, और 6 लाख टू 9 लाख एट द रेट ऑफ 10%, तो ये भी 3 लाख की होते हैं। 3 लाख का 10% 30,000, तो ये कितना टैक्स भरेगा? समझ में आ रहा है? प्लस 4% का सेस, वो तो सबको ही भरना पड़ता है। टैक्स, इनकम टैक्स 45,000 भरेगा। तो ये देखो ना, किसी फ्रेंड का इनकम 7 लाख है, किसी का इनकम 9 लाख है। 7 लाख वाला जीरो टैक्स भर रहा है, और 9 लाख वाला एक पगार गया ना उसका, एक पगार गवर्नमेंट को गया, तो बुरा लगेगा कि नहीं उसको? बहुत लगेगा। फिर वो क्या बोलेगा आपको? ऐसा कोई जादू है क्या आपके पास कि ये 7 लाख के नीचे आ जाए और ये जीरो हो जाए, ठीक है ना? तो उसको बोलने का हाँ जादू है, लेकिन जादू का फिर आगे जाके तकलीफ होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए रेडी हो तो हम जादू दिखाते हैं आपको, ठीक है ना? जादू हमारे पास बहुत सारे हैं।